how to handle wages and salaries that needs to be given. एक एम्प्लॉय ना बन करके बट एक वॉरियर की तरह काम करें. एंड इफ यू आर स्टिल वर्किंग यू शुड फील वेरी लकी. आपको बहुत लकी फील करना चाहिए. अगर आपको काम करने को मिला हुआ है तो यार इस बारी 200% दीजिए. They will not be liable to pay rent for that particular period. Good evening, everyone, and I welcome all of you to Visionary Talks. And today's session is very, very important, and I have a very uh, learned and a seasoned person with me, and an expert in his own dimension. And today's topic is, I believe, even the thirst point for every professional, every individual, every business owner, and everyone is actually striving with this problem. So let few of the people come in, and sir, we'll start up the session. Abhishek ji, can you read me? Yeah. All right, sir. Just 2 more minutes and then we'll begin. We'll take it forward. All right. Perfect. All right. Good evening, everyone, and I welcome all of you to the Visionary Talk. And today, with me, I have a very seasoned person with me and a friend of mine, Mr. Abhishek Gupta. He's the SRCC alumni. He's a chartered accountant, LLB, one of the very, I would say, an outstanding KPMG alumni. And the best part is, he is among the top 1,000 valuation experts from New York University. He's a registered valuer for startups. And I welcome Abhishek ji to Visionary Talks to you. Yeah. Thanks, Ujjwal. It's always a pleasure listening to you and your visionary talks. I'm a great follower of yours, and it fills me with energy whenever I hear you. Thank you so much, yaar, for giving your time. So today, I believe it would going to be a very great learning session for all of us. Indeed, it would be for mine as well, because now today on the specific agenda, what the things he's going to bring in front of us. So we have come up with a few questions which I got to listen from a lot of business owners and professionals, and I shared with Mr. Abhishek, and then he said, yes, we definitely can address the people and can let's try to become as the best possible solution in this time of pandemic, and let's contribute ourselves to the humanity. So this session is totally on lots of learning for everyone on insights on taxation and finance management during this lockdown time. So अभिषेक जी, the point is कि मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन है सर, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि आई डोंट नो, आपके पास भी बहुत सारे आपके क्लाइंट्स के जरूर follow-ups आए होंगे, and because a lot of people have been interacting with me, even my community people, my clients and other people also. और ये एक सबसे बड़ा थर्स्ट पॉइंट बन गया क्योंकि लॉकडाउन में पूरा कैश फ्लो ब्रेक हो चुका है. एंड नाउ इट्स अ बिग क्वेश्चन कि टैक्सेशन एक मुद्दा है और ये फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है. सो आई बिलीव आपके पास भी सर ऐसी क्वेरीज बहुत सारी आई होंगी. डेफिनेटली ये जो बेसिकली पूरा कोरोना वायरस की वजह से सारे बिजनेसेस की जो बैकबोन है दैट हैज बीन ब्रोकन. तो पूरा कैश फ्लो मैनेजमेंट की जो साइकिल है दैट हैज बीन ब्रोकन. लोगों का रेवेन्यू नहीं हो रहा है, लोगों का सेल्स नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ उनके फिक्स एक्सपेंडिचर है जो कि सैलरीज है, रेंट्स है, वो भी करने हैं. लोग पहले ही कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से, जो इंडिया का एसएमई सेक्टर है, पहले ही कैश फ्लो की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से वो जूझ रहा था. और ये कोरोना वायरस की वजह से उनका जो है दैट इज लाइक कि उनको और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो गई है. रेगुलर डे टू डे उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट करना, बैंक की ईएमआई पे करना, सो दैट वाज गोइंग डिफिकल्ट. एंड हाउ टू मैनेज इन दिस टाइम, इट्स अ बिग stress for people. Absolutely. Even I even got to listen from few of the people. They were getting under depression. A lot of business owners, specifically from manufacturing side, they were getting into depression because of this. How to tackle this? So we would be, sir, love to
take some very knowledgeable insights from you on this. So we have come up with few questions as per the based upon a lot of people have been asking me. So I would go one by one and I would request you to throw some limelight as per your statistics and knowledge that how to do that. Right, sir? Shall we begin? Okay. Yeah, sure. All right, sir. Thank you. So सबसे पहले सर आई वुड लाइक टू नो ऑन दिस, एज आपने ये खुद ही बात कहा कि कैश है नहीं, और सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि खर्चे बंद नहीं हो रहे। उसमें खर्चे में एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि गवर्नमेंट एक तरफ से तो ये कह रही है कि आप एम्प्लॉयज वगैरह किसी को मत निकालिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट के टैक्सेस भी एक बहुत बड़ी चीज है। सो वी वुड लाइक टू नो, इज देयर एनी टैक्स रिलीफ गिवन बाय द गवर्नमेंट? कोई ऐसी स्कीम है क्या? हाँ जी, डेफिनेटली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ये बहुत ही एक अप्रिशिएबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो रेगुलरली जो है दे आर डूइंग देयर मीटिंग और बहुत प्रोएक्टिवली जो है वो रिलीफ लेकर आ रहे हैं टू डील विद दिस सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस। अनफॉर्चुनेटली जो लॉकडाउन पीरियड है वो एक्सटेंड हुए जा रहा है। पहले वो 14 अप्रैल तक हुआ, अब वो एक्सटेंड होकर 3 मई तक हो गया और अभी भी केसेस में कुछ ऐसा रिलीफ नहीं हो रहा है, तो वी मे एक्सपेक्ट कि वो लॉकडाउन और फर्दर जाए। तो इसके दौरान पहले जो गवर्नमेंट ने है अपनी कुछ डेडलाइंस बढ़ाई थी। वो डेडलाइंस जनरली जो भी 20 मार्च के बाद डेडलाइंस हो रही थी वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दिया था 30 जून तक। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स होती हैं, दिस इज ओनली फॉर बिलेटेड टैक्स रिटर्न्स और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी थी, जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं करी थी, तो दे कैन नाउ फाइल इट टिल 30 जून। ओके, तो हाँ जी। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार हमने तो अभी तो हमें पता भी नहीं कोई टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या करनी है। तो जिन्होंने ऑलरेडी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर 18-19 फाइल कर दी है, ये उनके लिए नहीं है, बट जिन्होंने नई फाइल करी है वो फाइल कर सकते हैं 30 जून तक। ओके। सेकेंडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डेट एक्सटेंड कर दी है लिंकिंग ऑफ पैन नंबर विद आधार नंबर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पैन की जगह हम आधार यूज कर सके और दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सके। तो उसकी डेट भी थी 31 मार्च, जो कि अब हम कर सकते हैं 30 जून तक। राइट। थर्ड एक पॉइंट आता है कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस ओनर्स के लिए, वो है टीडीएस का और टीसीएस का। तो जो मार्च मंथ का टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो जो मार्च मंथ का टीडीएस है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय 30 अप्रैल। तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप 30 अप्रैल तक वो जमा नहीं करा पाते तो आप ये 30 जून तक जमा करा दोगे अगर, तो हम आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है वो 18% की जगह खाली 9% लेंगे। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो कि कैश क्रंच में हैं, तो गवर्नमेंट ने उनका 18% से कम करके 9% कर दिया। ऑल्दो बहुत सारी प्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को कर रखी है कि इसे कंप्लीटली वेव ऑफ कर देना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने इसे 18% से जो है 9% पे किया। और जो एक फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 80C की हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, LIC की, या फिर हम जो है 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं या PPF में पैसा जमा कराते हैं, तो सब लोग जो है मार्च के एंड तक वेट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं और 31 मार्च से पहले हम करते हैं तो हमें वो 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। ये डिडक्शन भी अगर हम 30 जून तक भी ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हम पिछले साल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ही ये डिडक्शन ले सकते हैं। और ये डिडक्शन जैसे आजकल लोग प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन कर रहे हैं, तो अगर वो 80G सेक्शन के अंडर डोनेशन भी करते हैं देन ऑल्सो दे कैन क्लेम डिडक्शन फॉर दैट इन प्रीवियस ईयर। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, तो वो अगर लॉकडाउन खुलता है तो अब कर सकते हैं, और अगर नहीं खुलता तो मे बी गवर्नमेंट इसकी डेट और फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। यहाँ पर एक चीज मैं फोकस करना, हाँ जी प्लीज। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि बीच में कंफ्यूजन हुआ था लोगों को कि गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दी। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर will remain from 1st of April till 31st of March only। तो गवर्नमेंट ने खाली कुछ फाइलिंग की डेट्स एक्सटेंड करी है 30 जून तक, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा। इसके अंदर हमारी जीएसटी की रिटर्न्स भी है जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है फॉर द मंथ ऑफ February, अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल। तो वो भी हम जो है रिटर्न्स जो है 30 जून तक फाइल कर सकते हैं, जो कि हमें फाइल करनी थी। तो और उस पे जो जीएसटी पेमेंट है, जीएसटी पेमेंट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कम किया। हाँ जी। सो बेसिकली
on an average what I have understood is अमूमन तौर पे government has just given a relief in the dates of filing it and that too उस पे जो interest rate है उसको कम करा गया है और इससे ज्यादा कोई हमारे पास relief नहीं आया है। हाँ जी, तो फर्स्ट की डेट्स ऑफ फाइलिंग के ऊपर हमें थोड़ा रिलीफ मिला है। सेकेंडली डिपॉजिशन के ऊपर हमें रिलीफ नहीं मिला है, बस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें जीएसटी पे करना है, वो टाइम पे करना है, टीडीएस पे करना है, वो टाइम पे करना है। अगर हम लेट पे करते हैं तो 18% की जगह 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगेगा। तो सर हमारे पास कोई अलग से रिलीफ मैन्युफैक्चरर्स के लिए? वी हैव a few of the person right now, Mr. Ratan with us. As a viewer, he is asking कि sir, is there any for manufacturer, is there any specific relief on the taxation? क्या कोई manufacturers के लिए कोई taxation पे specific relief है? तो बेसिकली कोई स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरर ऐसा कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि टीडीएस का जो रिलीफ है, जो जीएसटी फाइलिंग्स का रिलीफ है, वो सारे बिजनेसमैन के लिए और उसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं। तो बेसिकली जो रिलीफ है दैट इज कि अगर हमारे अभी कैश क्रंच है और हम टीडीएस की पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे, अगर हम जीएसटी की पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे, तो वो हम डेफर कर सकते हैं 3 मंथ्स में, और इसके जो इंटरेस्ट लगेगा इसकी लेट पेमेंट की वजह से ना तो हमें कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है, ना हमारे ऊपर कोई पेनल्टी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप लेट पे कर दीजिए, उसको इंटरेस्ट के साथ पे कर दीजिए, इंटरेस्ट एक रिड्यूस होगा 9%, जो कि आपकी ओडी लिमिट्स का भी होता है 9%, 10%, तो गवर्नमेंट उस पर आपसे इंटरेस्ट ले लेगी और उस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी और कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लॉन्च करेगी। Right. Okay. And last thing I would like to know in this, like a lot of businesses which fall in the category of monthly filing of GST, जिनको हर month file करना होता है 20 के आसपास, as per their sales, अब पूरा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है। तो जिनका जैसे मान लीजिए 20th अप्रैल को फाइलिंग था, तो दे कैन डू इट टिल जून। हाँ जी, सो गवर्नमेंट ने जो है एक सेग्रीगेटेड वे में बोला है कि बाय लास्ट वीक ऑफ जून हमें रिटर्न्स फाइल करनी है, और वो उसकी जो ड्यू डेट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 24th ऑफ जून टू 3rd और 4th ऑफ जुलाई। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस एंड डिपेंडिंग ऑन टर्नओवर, हम जो ये सारे रिटर्न्स है अभी हम डेफर कर सकते हैं और हम ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन द लास्ट वीक ऑफ जून। All right. Okay. Thank you so much. So I believe this answers very clearly our the first concern of all the business owners, SMBs, viewers, and even I believe ये मैंने पहले खुद discussion कर लिया था, because this was something our concern also, where tax relief में government ने जो अभी अपने को दिया है, that's something they have extended the dates for all the taxations, plus along with that they have minimized the rate of interest, which was usually 18%, that has been taken half to 9%. Right, sir? So second, we have a second concern and second question that is a biggest thing I would say. अभी सर ये लॉकडाउन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है? Now lot of people have become insecure. You talk about a working professional, you talk about a business owner, everyone, because cash flow है नहीं, खर्चा आपका वैसे ही चल रहा है, you have to stay home, and when it comes to specifically business owners, they have their liabilities of paying it to their employees. उनके operational कुछ ऐसे unavoidable expenses हैं जो बंद नहीं हो सकते, उनके बिजली के बिल हैं जिसपे they have to give that certain amount of rents, all those things. अगर हम बात करें working professional की, they have their loans going on, उनके अपने loans चल रहे हैं, they have other problems, right? And in this particular point, so what you would advise as an expert that how to handle wages and salaries that needs to be given specifically क्योंकि मैं समझता हूँ इसमें एक सबसे पहले जो हमारे को इस समय I believe as a we as a people must carry a major responsibility that economy is the backbone and SMB sector of India is the biggest backbone of India. उनको कंसोल करना बहुत जरूरी है। तो आप उसमें उस पे क्या एज एन एक्सपर्ट एडवाइस देंगे that how to handle the wages and salaries that needs to be paid? Over to you, Abhishek. Right. So this is the मतलब ये सबसे बड़ा एक गूगली क्वेश्चन है सारे बिजनेस ओनर्स का, और हमारे पास कांस्टेंट कॉल्स और कांस्टेंट डिस्कशंस हो रही है कि कैसे इस सिचुएशन को फेस आउट किया जाए, कि कैसे जो है हम अपना कैश फ्लो भी मैनेज करें और एट द सेम टाइम हमारी टीम का मोरल भी एकदम बूस्ट अप रहे और वो मोटिवेटेड भी रहे।
तो एक बहुत ही मतलब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सबके लोगों के लिए हो गई है। तो एवरी बिजनेस इज हैंडलिंग दिस इन देयर ओन पर्टिकुलर वे बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, देखिए किसी भी बिजनेस का जो इंडिया इकोनॉमी है, तो 90% से भी ज्यादा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक एसएमई सेक्टर की वजह से जो है चल रहा है। बिल्कुल जी। तो अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि सारे लोगों का जो मेन एक्सपेंडिचर है वो होता है उनका सैलरी वेजेस का और रेंट का। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो है फिर भी जो है इस समय काफी कम है, क्योंकि जो है फैक्ट्रीज बंद है, लोगों के जो है ऑफिसेज बंद है, तो उन्हें बेयर मिनिमम अमाउंट उसका बियर करना है। लेकिन जो मेजर एक्सपेंसेस है वो है सैलरी का, वेजेस का और रेंट का। जो सैलरी और वेजेस है उस पे लोगों का घर चल रहा है। अगर उनके पास सैलरी वेजेस जाएगी तभी वो जो है अपना घर चला पाएंगे। और कैसे ये डील होगी, एक बहुत ही सिचुएशन जो है डिफिकल्ट है। तो डिफरेंट इसका कोई मैथमेटिकल साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है कि हम इसमें क्या करें, लेकिन मैं आपको बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ कि डिफरेंट बिजनेस ओनर्स कैसे कैसे टेक ले रहे हैं इसके। We would like to hear that, sir. Would like to love to hear that. Yeah. So if we talk about MNCs, so MNCs which are cash rich, so they are paying full salaries to their employees. ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उनके जो इंक्रीमेंट्स थे और जो बोनसेस है, they have shifted those increments and bonuses maybe by 1 quarter or 2 quarter, लेकिन they are trying कि वो पूरी सैलरीज दे। लेकिन जब हम एक एसएमई पर आते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, तो उनकी खुद ही सेल नहीं हो रही है, उनका खुद ही रेवेन्यू नहीं हो रहा है, तो वो अपनी कैसे सैलरीज देंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल बिजनेसेस, देयर आर एक्सेप्शंस। अगर कोई मेडिकल बिजनेस है या कोई मास्क मेकिंग, या आज की डेट में लोगों ने छोटे छोटे यूनिट्स लगा लिए हैं जिसमें वो मास्क बना के सेल आउट कर रहे हैं, समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, बट जो जनरल बिजनेसेस है जिनका इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सैलरीज जो है दे आर रिड्यूसिंग द सैलरीज। एंड सम पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो कर रहे हैं कि पेड लीव दे रहे हैं, अपने अनपेड लीव दे रहे हैं अपने स्टाफ को, कि आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप जो है 15 दिन की छुट्टी ले लीजिए और 15 दिन की हम आपको 50% सैलरी दे देते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि कीपिंग अ बेयर मिनिमम कैप, कि किसी ने 9,000 रुपए का, किसी ने 10,000 रुपए का, वेजिस के टर्म्स में किसी ने 6,500 का, किसी ने 7,000 का, कि इतना बेयर मिनिमम हम आपको वेजिस देंगे जिससे आपका घर चले। और जो है जो ओवर एंड अबव वेजिस है, सो ओवर एंड अबव दोज वेजेस हैं, उसका कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट वो जो है अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, राइट। कुछ बिजनेसेस स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है 50% सैलरीज कट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की, और कुछ लोग जो है डेफर कर रहे हैं कि अभी हम आपको जो है आपका 50% सैलरी देंगे और बाकी जो सैलरी है दैट विल बी पेड इन फ्यूचर टाइम, जब जब वो कंपनी मतलब विल रिवोक इटसेल्फ बेसिकली। तो जिससे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, दैट्स व्हाई जो है बिजनेसेस व्हाट दे आर डूइंग इज कि they are understanding the requirements of each and every person, and they have relationship with their team, with their staff members, and they are trying to pay them bare minimum so that किसी को भी problem ना आए, सबके घर के minimum खर्चे चलते रहे। और जो delta amount है, that is incremental amount, so they are either linking it with their revenue or they are making different provisions जिससे जो है वो defer किया जाए, या कुछ ऑफ कोर्स सारे सैलरी लोगों को भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, काफी लोगों की सैलरी जो है कट भी हो रही है, दे आर टेकिंग होम 50% सैलरी, 60% ऑफ सैलरी। तो ये जो प्रॉब्लम है सबके लिए है, बट एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे जो है कि जो एसएमई है वो भी बहुत लॉस मेकिंग सिचुएशन में ना जाए और एम्प्लॉइज को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। Absolutely. राइट। Something I would say a worth and a very valid expert advice Mr. Abhishek has shared with us. So to all the SMBs, जितने भी SMBs हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, for them the best part, and all the working professionals also, I would request you people कि आप सारे के सारे एक आपस में तालमेल बना करके, हाथ से हाथ मिला करके, कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम डिवोटेड हैं तो वी मस्ट गो पैरेलल इन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ टाइम जब हमें एक साथ मिलकर एकजुट होकर के लड़ना है। सो समहाउ एसएमबीज बिल्कुल इग्नोर ना करें, जो भी वो कम करके परसेंटेज कुछ पे कर सकते हैं, बिकॉज अभी वैसे ही कोरोना लॉकडाउन में हमारे खर्चे तो मिनिमाइज्ड है ही, वी जस्ट हैव टू बी एट होम। एक बेसिक ग्रोसरी का हर किसी का एक्सपेंस है और तो कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं है। सो दे शुड ऑल्सो टेक इट ऑप्टिमिस्टिकली, एंड बिजनेस ओनर्स भी उसको नेगेटिवली ना लें कि वी हैव बीन बर्स्ट। And one add-on which I would like to suggest to all the SMBs, खासकर SMBs, which even I was discussing with Abhishek ji only few days back, हम किसी बारे में बात कर रहे थे, so that I would give you from my experience कि जितने भी SMBs हैं,
सारे एसएमईज के कहीं ना कहीं पेन पॉइंट्स हैं बिजनेस को ऑटोमेट करना, और हर एसएमई अपने बिजनेस फंक्शनिंग में इन्वेस्ट करता है समय से समय पर उसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं हर एसएमई से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऑल दी बिजनेस ओनर्स एंड ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, प्लीज आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को ऑटोमेट करने में। मेक एसओपीज ऑफ योर बिजनेस, स्टैंडर्डाइज योर बिजनेस, बिजनेस को इस तरीके से कीजिए ताकि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह निकल के जब ये नया सवेरा आए तो उस नए सवेरे में आप बहुत फुल फोर्स से और एक नई एनर्जी से अपने ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को ले जा सके। और साथ ही साथ मैं जितने भी वर्किंग लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यार इस बारी इस सिचुएशन में आप सारे लोग एक एम्प्लॉय ना बन करके बट एक वॉरियर की तरह काम करें। एंड इफ यू आर स्टिल वर्किंग यू शुड फील वेरी लकी, आपको बहुत लकी फील करना चाहिए अगर आपको काम करने को मिला हुआ है। तो यार इस बारी 200% दीजिए, अपनी नॉलेज पे काम कीजिए ताकि जब ये रिवाइव बैक हो तो आपकी नॉलेज उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सके, तभी ये हाथ में हाथ मिलाकर चल पाएंगे। सो this is like how the SMBs can manages their wages and their salaries. Thank you sir, it was a wonderful suggestion I believe. परफेक्ट। Right, so now moving on to the इसमें third रेंट point. का, जी सर, हाँ बताएं प्लीज। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंट का। ओके, रेंट। रेंट का तो हमारे बहुत सारे एसएमबीज हैं, अगर वो जो मतलब फॉर एग्जांपल स्ट्रीट्स पे उनकी शॉप्स है, रिटेल काउंटर्स हैं, तो दे आर पेइंग ह्यूज रेंट्स, इवन फैक्ट्रीज के जो है ह्यूज रेंट्स पे कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हमें अपना रेंट एग्रीमेंट चेक करना चाहिए, और रेंट एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होता है जिसे बोलते हैं फोर्स मेजोर, जिसका मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ गॉड। तो अभी हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे कि पीवीआर है, रिलायंस रिटेल है, तो वो इस क्लॉज का यूज कर रहे हैं। और इस क्लॉज का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ कोरोना वायरस जैसा या कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस इन ऑपरेशनल हो जाता है, तो दे विल नॉट बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो हम इस क्लॉज का अपने रेंट एग्रीमेंट्स में यूज कर सकते हैं। और अगर हम कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है तो ये वाला क्लॉज जो है डेफिनेटली हमारे एग्रीमेंट में होगा। अगर हम रेजिडेंशियल रेंट की बात करें तो वहां पर ये हो सकता है कि इररेलेवेंट हो, वहां पे ये एप्लीकेबल ना हो। बट अगर हम कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो डेफिनेटली हमें इस क्लॉज का यूज करना चाहिए, और हमें जो है अपना रेंट देने से हम बच सकते हैं, या फिर हम उस रेंट को डेफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सुन रहे होंगे जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी रेंट पर और उन्हें रेंट मिलना होगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे पूरा एक देश जो है डिफिकल्टी के अंदर है और बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो वो हमें म्यूचुअली बात करनी चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स देखने चाहिए, और वो रेंट को कम करके या फिर डेफर करके हम पे कर सकते हैं। So very very valuable point he has given to all the business owners. I must say it's a very valuable insight for all of us. जितने भी ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं खासकर कमर्शियलाइज रिटेल वगैरह में जिनके रेंट्स बहुत होते हैं, एंड एज वी नो इंडिया में एक बिजनेस को रेंट मारता है, रेंट एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। तो कमर्शियल खासकर प्रॉपर्टीज में और रिटेल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ आप अपने रेंट एग्रीमेंट को चेक कीजिए, क्योंकि बेस्ड अपॉन हिज लॉ एक्सपीरियंस एंड बेस्ड अपॉन हिज क्लाइंट्स एक्सपीरियंस, अभिषेक जी शेयर विद अस कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट को जब आप देखेंगे तो उसमें फोर्स मेजॉर व्हिच मींस इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। इसका मतलब बड़ा सिंपल ये होता है कि अगर कुछ भी एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, जो कि कोरोना एक एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसमें यू हैव द फुल राइट वेयर यू कैन टेल द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आई कैन नॉट गिव द रेंट एज पर दी लीगल अग्रीमेंट। तो मैं समझता हूँ सर ये बहुत बढ़िया पॉइंट एक रखा है अभिषेक जी ने, एंड he has given us a wonderful insight, क्योंकि आई बिलीव बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को ये चीज परेशान करनी होगी कि वी डोंट हैव एनी रेवेन्यू कमिंग इन, सेल्स है नहीं, वी नीड टू पे सैलरीज, हमें अपने भी खर्चे चलाने और फिर रेंट ऊपर से, जो कि एक सबसे बड़ा हेडेक है। It's a wonderful sir, wonderful insight. So two things he has already shared with us, very important, how to manage the wages. तो wages में हम सबको हाथ में हाथ मिला करके कोऑपरेट करके चलना चलेगा पड़ेगा, both business owner and working professional. No one should get into any depression, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब हाथ में हाथ मिला करके एकजुट होकर के चलेंगे तभी बात बनेगी। और दूसरा खासकर रेंट्स के लिए, जितने भी लोग रेंट्स पे हैं रिटेल कमर्शियल विद हैवी रेंट्स, वो अपने इस क्लॉज का यूज करके, एन एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज का यूज करके, दे आर एब्सोल्यूट, दे हैव द राइट where they can say their property owners that they will not be able to pay the rents. और जो प्रॉपर्टी ओनर है वो इसको नेगेटिवली ना ले,
देखिए सारी चीजें पैसे के लिए नहीं होती। अभी हमने ये लॉकडाउन क्यों करा है? अल्टीमेटली लॉकडाउन करने का मकसद ही यही था। देश, अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने कहा जान है तो जहान है। भाई आप मानते हैं इकोनॉमी चली गई, बट जान ही नहीं रही आपकी, तो आप कैसे पैसे का करेंगे क्या एट द एंड ऑफ द डे? किसी ने कहा है ना, इफ wealth is gone, Mahatma Gandhi has said, if wealth is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone, and if character is gone, everything is gone. तो हेल्थ चली गई तो फिर आप क्या करेंगे? So very wonderful advice, and I believe ये help करेगा अभिषेक जी, जो आपके inputs हैं. Sir, coming on to the third question. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ आपकी फिर एक्सपर्ट एडवाइस इस पे सारे व्यूअर्स को हेल्प करेगी समझने में. लॉकडाउन में इकोनॉमी की हालत सर पूरी खराब हो चुकी है, एंड इट इज नॉट अबाउट इंडिया, बट मेजर बिगेस्ट इकोनॉमीज आर सफरिंग राइट नाउ. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें इकोनॉमी के साथ साथ अभी आगे क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस समय में अपनी जरूरतों के हिसाब से जिसके पास जो भी पड़ा है उसको ध्यान में रख करके एक आदमी वाइज तरीके से नाइसली कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करे, उस कैश फ्लो को कैसे मैनेज करे. एक घर में बैठा हुआ वर्किंग एम्प्लॉय, एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का आदमी, एक कंपनी का बिजनेस ओनर, एक कंपनी का सीईओ, हूएवर इट इज, हर आदमी का एक थर्स्ट पॉइंट है. क्योंकि ये कहना बड़ा गलत होगा, अगर एक कंपनी 100 करोड़ की है, एक कंपनी 5 करोड़ की है, एक कंपनी 50 लाख की है, एक कंपनी 10 लाख की है, तो हर किसी के खर्चे भी उस तरीके से हैं. तो सबकी स्थिति एक बराबर ही है देखा जाए तो, क्योंकि पूरा कैश फ्लो डाउन है. So in this time, sir, what is your expert advice on how to manage cash flow in this time to everyone? Okay, so बहुत ही एक relevant questions हैं जो कि हम डेली एनकाउंटर कर रहे हैं और उस पे कर रहे हैं. तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, तो हमें इसे, ठीक है कि ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि हमारा पूरा लॉकडाउन हो चुका है, बट एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. जैसे आपने बोला, क्या है कि एसएमई के अंदर क्या होता है कि मेजर ऑफ बिजनेस जो है ना ओनर डिपेंडेंट होता है. जब वो ओनर डिपेंडेंट होता है तो कभी आप मार्केटिंग कर रहे होते हो, कभी आप सेल्स कर रहे होते हो, कभी आप ऑपरेशंस कर रहे होते हो, कभी आप फाइनेंस कर रहे होते हो, कभी आप एचआर कर रहे होते हो, कभी आप रिसर्च एंड डेवलप कर रहे होते हो. तो अभी हमारे को एक टाइम मिला है कि जिसमें हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत है और हम जो है फोकस कर सकते हैं मैनेजमेंट के ऊपर. तो मैनेजमेंट हम जनरली कर ही नहीं रहे होते, हम जो है फायर फाइटिंग में लगे हुए होते हैं अपने बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में. हाँ जी. तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि हमें ये जो टाइम है ना हमें बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए. हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये टाइम, कि सबसे पहले एज अ बिजनेस ओनर हमें 3 चीजों पे काम करना है. ठीक है, पहली चीज होती है पीपल. तो हमारे जो पीपल होते हैं दे शुड बी कमिटेड एंड दे शुड बी कॉम्पिटेंट. ठीक है, तो अगर हमारे लोग जो है कमिटेड होंगे और जो कॉम्पिटेंट होंगे उसके लिए हमें उनकी ट्रेनिंग्स करानी होगी. तो इस टाइम को हम यूज कर सकते हैं उनकी ट्रेनिंग्स कराने के लिए. जैसे सेल्स वाले हैं तो हम जो है एक सेल्स पिच अपनी बना सकते हैं और जो है वो सेल्स पिच की हम रिहर्सल कर सकते हैं. राइट, हम अपने जो प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कैटलॉगिंग कर सकते हैं, हम अपने प्रोसेसेस, सेल्स प्रोसेस के एसओपीज बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एसओपीज बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. राइट, सिमिलरली जो सेकंड प्रोसेस एक हो गया हमारा पीपल जिस पर हमें काम करना है. दूसरा हमारी स्ट्रैटेजीज, कि हमारी स्ट्रैटेजीज कैसे होनी चाहिए. जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तो दो स्ट्रैटेजीज शुड बी बेसिकली मैग्नेटिक एंड दो शुड बी प्रॉफिटेबल. मैग्नेटिक इन टर्म्स ऑफ कि जब हम अपनी सेल्स की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो लोग हमारे पास खुद आए हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए. राइट, एंड एट द सेम टाइम दो शुड बी प्रॉफिटेबल आल्सो. हम जो भी धंधा करें हम उसमें मतलब प्रॉफिट होना चाहिए. हम सारे एसएमईज को, एक स्टार्टअप और एक एसएमई का बिजनेस करने का तरीका अलग होता है. एक स्टार्टअप है जैसे कि ओयो है, ओला है, उबर है, तो वो जो है पर ट्रांजैक्शन लूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास फंडिंग के पैसे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव अलग है कि भाई मार्केट बड़ी होगी और उनकी मोनोपोली होगी और उसके अंदर वो रेट बढ़ाकर अपनी बढ़ा लेंगे. लेकिन एक एसएमई जिसके ऊपर लाखों लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है, वो ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम नहीं कर सकता. तो अगर हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. मार्केट में कंपटीशन की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने रेट कम करे जा रहे हैं. तो हमें स्ट्रेटेजीज बनाने का ये राइट टाइम है
नेगेटिव न्यूज देख के, कोरोना की न्यूज देख के हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इनफैक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स वी शुड फोकस कि हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं, उसकी हमारे को मार्केट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। जब मैं अपनी टीम से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं, बाहुबली का एग्जांपल देता हूं कि वो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उसने एक टेंट को फेंक कर सारे लोगों को एक बारी में चला दिया। तो हम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि एक बारी में हम पूरी मार्केट को एक्वायर कर पाए। इकोनॉमी में डेफिनेटली स्लो डाउन है ना जी। इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है, ये स्लो डाउन इम्पैक्ट करेगा जिनका 50% 60% मार्केट शेयर है। हमारे जैसे एसएमई जिसका मार्केट में 1% शेयर भी नहीं है, वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर तो हमें बाउंस बैक करके इमीडिएटली जो है वो मार्केट एक्वायर करने की स्ट्रैटेजीज अभी से बनानी पड़ेंगी, राइट। और जो थर्ड चीज जो आपने भी बोली कि किसी भी बिजनेस ओनर को जो इस समय फोकस करना है ना, वो करना है अपने सिस्टम्स पे, जो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कह रहे हैं। वो जो सिस्टम्स है दो शुड बी वेरी सिंपल कि सब लोगों को समझ आए, और दैट शुड बी सस्टेनेबल कि वो लॉन्ग टर्म में चल पाए। जब हमारे ये सिस्टम्स बन जाएंगे, जब हमारे ये सिस्टम्स प्रॉपर्ली चलेंगे और सबको प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड होंगे, तो ओनर डिपेंडेंसी चीजों पे कम हो जाती है और जो टीम है ऑटोमेटिकली काम करती है। और जब आपकी सारी टीम ऑटोमेटिकली काम कर रही है, सेल्स वाले सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑपरेशंस वाले ऑपरेशंस कर रहे हैं, और आप एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या करना है, आपको सबका रिव्यू लेना है। आपका डेट फिक्स होना चाहिए कि अगर मंडे है तो मेरे को रिव्यू लेना है अपनी सेल्स का, ट्यूसडे है तो मेरे को अपना रिव्यू लेना है ऑपरेशंस का, वेडनेसडे है तो मेरे को अपना रिव्यू लेना है। अगर हम ऐसे प्रॉपर्ली सिस्टम सेट कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नेक्स्ट लेवल पर होगी, और तभी हमारी यहाँ की एसएमई जो है वो एक एमएनसी तक पहुंच पाएगी बेसिकली। Now talking about cash flow management. Now cash flow management का क्या जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए अभी कर रहे हैं, और आप भी खुद भी कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल से भी आप करा सकते हैं, कि आप जो है आपका पूरा पिछला साल हुआ है 1920, तो आप उनके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा सकते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। पहला एनालिसिस जो एसएमई सेक्टर के अंदर बिगेस्ट पॉइंट है कि अपने डेटर का एनालिसिस। डेटर मतलब जिसे आपने सेल करी है और जिनसे पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब बड़ा शॉकिंग है कि 50% लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें किस किस से पैसे लेने हैं। Absolutely, I do agree. Completely agree. जिससे हाँ जी, तो जिससे रेगुलर बिजनेस चल रहा है उसकी तो पेमेंट चले जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसकी हम पेमेंट भूल ही चुके होते हैं। तो एक हमें सबसे पहला सिस्टम आप ये बना सकते हैं कि आपके एक अकाउंट्स टीम से या आपके अकाउंटेंट से जो है हर 15 दिन के अंदर एक डाटा की शीट जानी चाहिए मैनेजमेंट के पास, और मैनेजमेंट उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख कर दे कि हमने इस डाटा को फॉलो अप किया है, या फिर इस डाटा की हमारी बैड डेट हो गई है, इसे राइट ऑफ कर दो, या फिर इससे हमने सेटलमेंट कर ली थी, कैश में पैसा आ गया था उसकी एडजस्टमेंट कर दो, या फिर जो है इससे आपने कम दिखाए हुए हैं, इसमें हमारी ये सेल्स बुक नहीं हुई है। तो सबसे पहली बात जो हम इस समय लॉकडाउन में कर सकते हैं कि अपनी एक डेटर की लिस्ट बना सकते हैं जी। एटलीस्ट लिस्ट बनाएगी, लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करेंगे। ठीक है, लॉकडाउन है, सबके पास कैश क्रंच है, लेकिन जो बात शुरू होएगी तो फिर पैसे आएंगे भी। एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट। सेकंड पॉइंट सर, हमारी जो पेमेंट्स है, चाहे हमारी लोन की पेमेंट है, तो हमें बैंक्स को एक इंटीमेट करना है कि हमारी जो लोन्स की पेमेंट है वो हमारे को जो है मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाए, 3 महीने हमारी जो लोन्स की इंस्टॉलमेंट है वो दे सकते। A word point for all the I'm saying a worth point listening for all the working professionals. जी सर, continue please. हाँ जी, तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि बैंक आपको ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो आपकी वेव ऑफ हो गई है। आपके तो बैंक अकाउंट में ईसीएस लग जाती है बैंक की। आपको बैंक को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि हम जो है कैश क्रंच के अंदर है, और एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आप हमारी ईएमआई को जो है शिफ्ट कर दीजिए, और इन 3 महीने में अगर पेमेंट नहीं हो पाएगी तो हमारा अकाउंट जो है एनपीए क्लोज नहीं होगा। तो बैंक्स विल जो है गिव यू सम मोरेटोरियम पीरियड, या फिर आपका जो लोन है वो रीस्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन हमें इसके लिए बैंक से बात करनी पड़ेगी, उन्हें ईमेल लिखना पड़ेगा, और सारे ईमेल्स की लिस्ट, बैंक की ईमेल की लिस्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके पास अपने लोन अकाउंट नंबर होंगे, और उसे मेंशन करके आप बैंक को एटलीस्ट इंटीमेट कर दीजिए बाय ईमेल और बाय फोन कॉल, जैसे भी पॉसिबल। Very insightful knowledge he has given. I would like to make it a re-point on what he has given to us. All those people who have going loans, as per the government notification के मुताबिक हम loans की EMIs को delay करवा सकते हैं, but वो अपने आप नहीं होंगी क्योंकि हर किसी के अकाउंट्स में एक ECS बंधी हुई है। उसके लिए आप लोगों को एक्सप्लिसिटली मेल लिखना पड़ेगा अपने लोन डिपार्टमेंट बैंक को। यू नीड टू राइट देम कि कैश फ्लो मैनेजमेंट की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू शिफ्ट माय EMI फ्रॉम 3 months so that they should not declare your account as non-performing account or as a defaulter account.
very valuable information. Please sir, over to you Abhishek ji, please continue. हाँ जी. सेकेंडली जो हमारे एक्सपेंडिचर है हमें उसकी लिस्ट बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि एक्सपेंडिचर हम डेफर कर सकते हैं. जैसे रेंट है तो रेंट इफ वी कैन ट्राई कि इफ वी कैन अवॉइड पेइंग रेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड सैलरीज भी जो है हम अपना जो होता है पीपल आल्सो डू नॉट सफर, उन्हें कुछ मिनिमम सैलरीज हम दें, बाकी जो है हम उन्हें डेफर कर दें. तो ये कुछ एक्सपेंडिचर हम अपने डेफर कर सकते हैं. सेकेंडली जो है हमारे को एज ए कैश फ्लो मैनेजमेंट, अगर हमारे पास कैश क्रंच है तो हम अपनी टीडीएस और जीएसटी की पेमेंट्स भी डेफर कर सकते हैं, बट वी विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट एट द रेट ऑफ 9%. तो अगर हमें वो कर सकते हैं तो इसमें जो है हमारे को कुछ रिलीफ मिल सकता है अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट करने के लिए. हम अपने बजट्स बनाएं, जो है पिछले साल के डेटा को लेकर हम अगले साल का एक बजट बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर सेल्स, जो हमारे फिक्स कॉस्ट है. और उस बजट के हिसाब से जो है जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हम अपने बिजनेस को काफी अलाइन करके हम बाउंस बैक कर सकते हैं बेसिकली. तो इस पीरियड में जो भी लॉस है वी शुड ट्राई कि हम वो जो है लॉकडाउन खुलते ही 1 महीने में 2 महीने के अंदर वो सारा लॉस जो है कवर कर लें. और वो तभी होगा कि अभी हम जो एक राइट माइंडसेट के अंदर अपनी स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स बनाएं. करेक्ट, राइट. Something I believe a very valuable point he has kept, and that valuable point which I am able to pick it up and which I have always I have been personally suggesting to a lot of people to bounce back. मतलब कहते हैं ना कि बिजनेस में हम बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको जो हम इन्वेस्ट करते हैं ग्रो करने के लिए बिजनेस को, तो ये एकदम सही समय है जब आपके पास पूरी पेशेंस है. और ये बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे एसएमबीज को देखा है. बिकॉज व्हेन आई टेक लॉट ऑफ लीडरशिप सेशंस और एसएमबीज को चैनलाइज टेक्नोलॉजी से करने की बात आती है, तो एसएमबीज हमेशा उलझे हुए रहते हैं. जैसा अभिषेक जी ने मैनेज करा, वो कभी मैनेज नहीं कर रहे होते. अभी आपके पास ना चाह के भी इतनी पेशेंस है, यू हैव सच अ टाइम कि आप उसको बहुत वाइसली इन्वेस्ट करके सारी चीजों को प्रोडक्टिवली यू कैन लाइन अप एवरीथिंग. वेरी वेल एडवाइस ही हैज गिवन. And also, I would like to also share with all of you, Mr. Abhishek, he is actually the founder of Starters CFO. सबसे सुंदर बात क्या है? One of the very unique model he has brought in is you will get a virtual chief financial officer. छोटे SMBs के पास finance कभी manage नहीं होता अच्छे तरीके से, तो you can have your virtual officer. So we were discussing together. All the business owners who are there या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, I would request all of you to share it with maximum people so that हर बंदे के पास ये knowledge reach out करे. And what we have come up as a plan, we were discussing 3 days back. आप में से जिस आदमी को भी अपने finance और accounts के proper streamline करने के लिए जो SOPs की हमने बात करी, that one pillar, and secondly अपने बिजनेस को उसके समन्वय के साथ टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट करके कैसे प्लानिंग करके इसको आगे बढ़ाना है, इन दोनों के लिए इफ यू नीड एनी सपोर्ट, वी आर कमिंग अप विद फ्यू प्रोग्राम्स. यू कैन डायरेक्टली पिंग टू अस. I would be looking forward for the technology, and being the CEO founder iSouls Group, we are a technology digital company, and Mr. Abhishek, he is actually the founder Starters CFO, which is a totally a finance domain person. आगे आने वाले कुछ दिनों में हम स्टार्टअप्स के लिए भी एक डेडिकेटेड सेशन लाएंगे, बिकॉज अभिषेक इज एक्चुअली द registered valuer from international New York University, so he can give us a lot of great insights, and though they are managing a lot of startups as well. और डिजिटल के माध्यम से कैसे ऑटोमेट करना है उसके लिए वी आर देयर. इवन स्टार्टर सीएफओ के भी डिजिटल को वी आर मैनेजिंग, सो वी आर डूइंग. सो मैंने कहा ना, सबको हैंड्स इन हैंड चलना है. ऐसे ही वी टुगेदर, हम दोनों ने, ही इज अ फाइनेंस पर्सन, वी आर अ टेक्नोलॉजी पर्सन, वी सिट टुगेदर in a good gesture for the well-being of the system, humanity, economy. We said, yeah, let's come together and let's give our some time to make it happen. So anyone who have any doubt, any business owner, and personally want to connect and want to strategize them, अपने आप को वो ऑर्गेनाइज और स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं फाइनेंस अकाउंट टर्म्स में और टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी और फाइनेंस अकाउंट्स पूरा का पूरा. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप पर्सनली you can either ping to me or you can ping to me as well as both. या तो आप स्टार्टर सीएफओ के फेसबुक हैंडल पे जाके उसको भी फॉलो कर लीजिए. प्लस यू कैन फॉलो माय ऑफिशियल हैंडल facebook.com/ujwalchuk and the company's handle iSouls Group, that is facebook.com/iSouls Group. You follow it, you give us a message. आप कहीं भी मैसेज डाल देंगे अपने आप पहुंच जाएगा. आप स्टार्टर सीएफओ पे डालेंगे तो वहां से अपने हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास डालेंगे वहां चला जाएगा. So we are there to help all the SMBs with perspective to their finance part, and secondly perspective to their technology and digital part.
I believe, Abhishek ji, we are all set to make it happen. या डेफिनेटली आवर पर्पस इज कि हम जो है एक एमएनसीज को जो सर्विसेज मिलती है, एक बिग फोर करके कंसेप्ट है जहाँ पे 4 बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज जो है एमएनसीज को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके प्रोसेसेस को बेस्ट करने में और उनके कंप्लायंसेस बेस्ट करने में। विद सेम विजन वी हैव स्टार्टेड स्टार्टर सीएफओ कि जो हमारे एसएमईज हैं उनके अंदर हम सारे टूल डिस्कसिंग दैट ओनली कि हमारा जो विजन है बेसिकली वही है कि एसएमईज को हम हेल्प करें और एसएमईज के जो हैं। सो क्या होता है कि एसएमईज, एवरी वन ऑफ अस 90% ऑफ पीपल इन एसएमई जो है वो टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि हम टैली सॉफ्टवेयर के ओनली 10% फंक्शनैलिटीज को यूज करते हैं। Right. उसका जो नाम है टैली 9 ईआरपी, तो हम ईआरपी तो उसका फंक्शन यूज कर ही नहीं रहे। सिमिलरली बहुत सारी चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल की सीआरएम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी कंपनी भी प्रोवाइड करती है, और जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने क्लाइंट्स के डेटाबेस बना सकते हैं, डेटर्स के डेटाबेस बना सकते हैं, और जो है हम डिफरेंट वर्क पिच कर सकते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, अपने बिजनेस की कम्युनिटी बना सकते हैं। सिमिलरली जो है अपने फाइनेंसेस से ही इंफॉर्मेशन निकाल के हम देख सकते हैं हमारा बिजनेस सही चल रहा है या फिर कुछ उसके अंदर लैकिंग हो रही है। 90% ऑफ बिजनेसमैन डोंट इवन नो कि वो प्रॉफिट बना रहे हैं या फिर वो एक्ट जा रहे हैं या कैसे उनका बिजनेस चल रहा है। राइट। तो गेटिंग इनसाइट्स इनटू द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छी अकाउंट्स टीम उसी को बोलेंगे जो आपके बिजनेस में इनसाइट्स दे रही है, लेकिन हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता, हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, और हम एक एस्टिमेशन के बेसिस पे बिजनेस चलाते रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी आर अ रैपिड ग्रोइंग बिजनेस, तो हमारे को जो है एक ये सारे फाइनेंस के प्रोसेसेस होने एक बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम एक रेगुलर बिजनेस है, अगर दुकानदारी टाइप बिजनेस है जो कि हमें पता है कि हमें सेल अपना साल का 50 लाख 1 करोड़ सेल करना है, तो वहाँ हमारी स्ट्रैटेजी कॉस्ट कटिंग होती है और उसके अंदर हम कम से कम खर्चा करके बिजनेस को चलाते हैं। बट ग्रोइंग बिजनेसेस नीड डिफरेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट। आपने अभिषेक जी एक बहुत अच्छी बात बोली है। I would like to reiterate that. I would like to repeat his words, and I would appreciate सारे के सारे लोग इस पे बहुत गौर करें जो इन्होंने एक बात बोली है। हम लोगों के साथ अमूमन तौर पे अधिकतर ऐसा ही होता है, बिकॉज ऑफ कैश फ्लो रहने की वजह से हम लोग कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दे पाते, ना कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि हमारे सिस्टम्स इन प्लेस नहीं होते कि आर वी जेन्युइनली मेकिंग अ प्रॉफिट और नॉट, और अगर बना भी रहे हैं तो कितना। हमें ऐसा लगता है कि चलो जी पैसा आ रहा है तो काम हो रहा है, चल रहा है तो चलने दो, जैसे भी चल रहा है, बट वी रियली डोंट नो दैट वेयर वी आर। ऐसा आपके पास मेरे हिसाब से सर बहुत सारे ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस आते होंगे जिनकी यही स्थिति होती होगी। डेफिनेटली सर, मोस्ट ऑफ द बिजनेस की यही स्थिति होती है, और क्योंकि वो ऑपरेशंस में इतने बिजी होते हैं इन चीजों का उन्हें ध्यान ही नहीं होता। लेकिन अगर हमें पता कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना डेल्टा, कितना हमारे पास है एक्स्ट्रा फंड्स है, कितना हम प्रॉफिट बना रहे हैं, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज उस पे होती है। अगर हम आपको बोले कि आपका बिजनेस में 2 लाख रुपए महीने की कम है, तो आप एक 50,000 रुपए महीने का एक मार्केटिंग का बंदा रख के अपनी सेल्स को सकते हो, अपने सेल्स का। लेकिन हमें डाउटफुल होते हैं कि बिजनेस कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा है, इसलिए वो स्टेप ले ही नहीं पाते हैं और उसमें हमारे बिजनेस की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो हमें अगर हम स्ट्रैटेजिकल वे डेफिनेटली बिजनेस में तभी इम्पैक्ट आएगा, जो काम हम 3 साल में करेंगे वो 1 साल में कर डालेंगे। There is one more point he has mentioned, very beautiful point. बहुत सारे छोटे एसएमबीज जो होते हैं वो कभी भी अच्छे स्किल टैलेंट को नहीं अब्सॉर्ब कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा यही डर लगता है, उनको मैक्सिमम टाइम यही लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस हैव दिस थिंग ओनली इन देयर माइंड कि हम कैसे, हाउ वी कैन इन्वेस्ट वेरी वाइसली इन दिस। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो टैलेंट पे इन्वेस्ट करना है। बट इफ दे रियली नो देयर प्रॉफिट लेवल्स, तो डेफिनेटली वो आदमी को पता है कि अगर मैंने 3 साल में यहां पहुंचा तो मैं 1 साल में वहां पहुंच सकता हूं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभिषेक जी, यू कैन ऑल्सो से शायद स्टार्टअप की एक बहुत बड़ी फंडामेंटल ग्रोथ का रीजन यही होता है दैट एवरीथिंग इज इन अ स्मार्ट वर्क नोन टू द पर्सन। डेफिनेटली वो सारी चीजें उनके सिस्टम से ही निकल कर आती है। इनफैक्ट वो अपने एप्लीकेशन ही ऐसे डिजाइन करते हैं जहाँ पे नंबर्स बोलते हैं। आप देखिए स्टार्टअप पैसे उठा रहे हैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर से कि कितने मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, वो पैसे उठा रहे हैं मेरे कितनी ऐप के डाउनलोड है, 1 रुपया भी रेवेन्यू नहीं है, और उनकी वैल्यूएशन हो रही है 14,000 करोड़ रुपए। उड़ान जैसा एक स्टार्टअप है जिसके जब 6.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू था, उसकी वैल्यूएशन हुई थी 14,000 करोड़ रुपए।
आप देखिए तो ये सारा क्या है, डेटाबेस का खेल होता है, जो कि हमारे एसएमई को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट हमें उस डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये जो बिजनेसेस हैं, जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं, ये हमें खत्म कर देंगे। तो हमें कंपटीशन में रहने के लिए टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें कंपटीशन में रहने के लिए, अपने बिजनेस को चलाते रहने के लिए, ये हमें जो है पूरा विद फुल एनर्जी इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और दिस इज द राइट टाइम, जो कि हम जो है आईटी कंपनी से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर की स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसने टेक्नोलॉजी कैसे लगाई है, या फिर कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जो इस फील्ड के अंदर है। हम अगर वो स्टार्टअप नहीं बन सकते तो हम उनके साथ एक रिलेशनशिप कर सकते हैं, हम उसके वेंडर बन सकते हैं, जहां से हमें बहुत बिजनेस फ्लो हो सकता है। राइट, वेरी वाइज। आई बिलीव इट वाज अ फैंटास्टिक थिंग ही हैज सेड कि स्टार्टअप्स को का जो सिनर्जी मॉडल है, स्मार्ट थिंग, which is like you are aware of everything that is happening in your business. और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे ही कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस के क्लाइंट हैं, आई वोंट टेक देयर नेम्स, बट द फैक्ट इज उनको पता ही नहीं होता कि उनके वेयर हाउसेस में इतना डेड स्टॉक पता होता है, उनको आज तक यही नहीं पता होता कि वो डेड हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है सारी की सारी। आई बिलीव इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन, बिकॉज ये तो सेशन मैंने भी बहुत एंजॉय करा, बिकॉज आई got to learn lot many things from him. And the best part is I believe lot of people have joined with us today, and I believe lot of them were also working professionals and business owners. So I, on the behalf of Abhishek ji as well, we together, both of you, both invite all the SMBs. आपकी कोई भी issues हैं, अगर आप लोग genuinely अपने आप को, जो नया सवेरा कोरोना के बाद आने वाला है, उसके लिए अपने आप को finance angle से, टेक्नोलॉजी एंगल से, अकाउंटिंग एंगल से, डिजिटल मार्केटिंग एंगल से स्ट्रेंथन करने के लिए रेडी करना चाहते हैं, वी हैव प्लान टू कम अप अ कंप्लीट सीरीज ऑफ लर्निंग फॉर यू। यू गाइस कैन डायरेक्टली पिंग टू अस, आप हमारे को डायरेक्टली पिंग कर दीजिए। आप ऑफिशियल फेसबुक पेज में चले जाइएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस पेज पे आप लाइव देख रहे हैं वहीं पर डीएम कर दीजिए, उसी को लाइक फॉलो कर लीजिए आगे अपडेट्स के लिए। ऑल्सो यू कैन गो टू facebook.com/startercfo, आप सर्च करिए starter CFO, and digital technology के लिए you can search iSouls group, so you can just like and follow it so that you will keep on getting the update. And in near future we will also come up with a session for startup people, valuation की game कैसे है, so just remain connected for feeds, you will get the live, आपको नई जो भी नया सेशन होगा, and definitely will come up for startups also, क्योंकि आज के सेशन में भी अभिषेक जी, if I'll share with you, बहुत सारों की स्टार्टअप्स के लिए रिक्वेस्ट आई है कि सर स्टार्टअप पे कोई बात की जाए, तो आज तो खैर हम नहीं करेंगे, वी आर ऑलरेडी प्लान से बहुत लेंदी हो चुका है सेशन, बट इट वाज रियली इंसाइटफुल, एंड वी टुगेदर बोथ ऑफ यू इनवाइट ऑल द SMBs, ऑल द पीपल होल हार्टेडली, लेट्स कम टुगेदर, फाइट अगेंस्ट इट, एंड लेट्स मेक इट अ बिग मोमेंट, ताकि आने वाला जो सवेरा हो बहुत ही उसकी खुशबू एक नई हो, एंड वी शुड टच द बिगेस्ट हाइट्स इन आवर वर्ल्ड, राइट सर? Right, definitely. Right. All right. So it was lovely connecting all of you. And last but not the least, आपकी कोई और भी questions है which you want that I should personally take up with different experts into Visionary Talk, आप उसको facebook.com/ujjwal chugh, जो जिस पेज पे आप लाइव देख रहे हैं उसमें मैसेज कर दीजिएगा. I will be roping up the other experts of the areas in Visionary Talk to come up on the same agenda. So it was wonderful talking to all of you, and great to see you all of you, and thank you Abhishek ji for such a wonderful knowledge and time you have given, your precious time to all the viewers. Yeah, thank you very much. हाँ, वैसे इनके बिहाफ पे तो मैं भी थैंक यू बोल सकता हूँ, क्योंकि इनकी सिनर्जी तो हम दोनों ने खैर सोचा ही है कि मिल करके हेल्प करते हैं. सो taking him as my elder brother, I can always say to all of you that yes, we can make it happen. Rest, once again I thank you all of you for joining live. Stay connected for further updates, follow the page, like the handle, and you can also subscribe for further updates. इसका recorded आपको ये video YouTube पे मिलेगा, so youtube.com/ujjwal chugh, you will get the recorded version of this, which you can follow for other updates, and for further updates you can subscribe the channel for further updates. So it was wonderful connecting with all of you. Thank you so very much for your love and support, and I really love you all. Here officially Abhishek Gupta, one of the experts, chartered accountant, LLB, and the founder CEO of Starter CFO, and I personally, your friend Ujjwal Chugh, CEO founder iSouls Group, officially signing off for Visionary Talk, and see you guys in the next Visionary Talk session. Till then, stay happy, stay healthy, and be at home, and do a great work and invest time in productivity. Thank you so much Abhishek ji for giving your time. Yeah, thank you everyone. Thank you Ujjwal ji.
Thank you, Ji. Thank you, everyone. All right. All right. Thank you, Okay. everyone. And I really, best of luck to everyone. Thank you. All right, Abhishek Ji. Thank you so much for your time. Okay. Bye.